Good morning, everyone, and good morning, students. How are you all? So, let's start today's class, and we will discuss today Partnership Act. You know the importance of Partnership Act in business law, as well as the both segment in BBA as well as MBA. This is the beginning of the any kind of business through the partners. So partnership is the most common form of business organization in India. A partnership the result of a contract between the parties. The essence of the success of partnership depends upon the mind, confidence, and the mindset of the parties. So, this is very important for the Partnership Act. We will have to mutually connected with the mind, the consent, and understanding. So, we will go for the partnership. The Governing Act in partnership. The Indian Partnership Act 1932 lays down the rules relating formation about the partnership, the rights and duties of the partners, and dissolution of partnerships. यानी कि 1932 का जो अधिनियम है, आर्टिकल है या पार्टनरशिप एक्ट है, वही अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है और उसी के अंतर्गत भी पार्टनर्स के राइट्स और पार्टनर्स के ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। चलिए डिफिनीशन देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to the profit of a business carried by all or any of them acting for all. It means this is the definition about the partnership who is responsible for the profit sharing which is agreed by the partners who is involved in the partnership act. And later on, who will partner? So partner forms and form name person who have entered into the partnership with one or another are called individually as a partners and collectively as a firm. कहने का मतलब है कि अगर पार्टनरशिप में हम जाते हैं तो पार्टनर में अगर इंडिविजुअली हम बात करते हैं तो वो पार्टनर होते हैं और कलेक्टिवली मतलब 2-4 लोगों के बीच की बात हो रही है तो वहाँ पे फॉर्म आ जाता है, उसको फॉर्म के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। और उस बिजनेस को रन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म नेम रख लेते हैं जिससे कि अपना ऑर्गेनाइजेशन काम करते रहे। इसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप आते हैं, सबसे पहले इसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप में आते हैं एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डिड। ए पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। ऑब्वियसली दिस इज वेरी मच गुड थिंग फॉर द पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ a contract between the parties. The contract may be oral or written. It is, however, always available to have a written contract which is more commonly used in the partnership. यानी पार्टनरशिप डिड में एक कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वही कॉन्ट्रैक्ट जो कि रिटेन हो या अनरिटेन हो या वर्ब ओरल हो, लेकिन ज़्यादातर पे पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप डिड को रिटेन होना बहुत ज़रूरी है और उसी को मान्यता दी गई है। एक मिनट और मैं बात ये करूँ कि आप पूछ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें पार्टनरशिप समझने के लिए आपको ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ एग्रीमेंट विच इज़ फोर्सफुल बाई लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट विच इज़ द consent where the promise is going to be done by someone and someone is accepting that proposal, that is agreement. यहाँ वहाँ पे आपको आपके थॉट्स की, आपके माइंड की, आपके म्यूचुअल कॉन्सेंट की बात होती है और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, फोर्सफुल बाय लॉ हो जाता है। और पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज होती है जो कि ओरल और
रिटन दोनों होती है, लेकिन खास करके ज़्यादा तौर पे आपको चीज़ें जो हैं रिटन तौर पे हो तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है पार्टनरशिप डीड के लिए। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि टू और मोर पार्टीज, इसके लिए इसेंशियल में होता है कि टू और मोर पार्टीज, मिनिमम पार्टनरशिप के लिए 2 लोग तो जरूर चाहिए और मोर देन दैट, उससे ज़्यादा हो। पार्टनरशिप नेसेसरीली रिक्वायर्स 2 और मोर पार्टीज to contribute it. The person association in partnership must be competent to contract and must give their free consent to the contract of partnership. Competent, this is very commonly used word in this kind of acts. Competent means who is able to understand the laws, who is not a bankrupt, who is not insolvent, who is not insane, who is not a characterless, who is like that person who is not indulge in different kinds of bad activities, one who is responsible for their acting, their behave, their everything, who is able to be a partner, a competent partner. So वही लोग हो सकते हैं कॉम्पिटेंट जो कि पीने वाले ना हो, इनसेन ना हो, या किसी तरह के लिटिगेशन में ना फंसे हों, ऐसे लोग पार्टनर्स हो सकते हैं, ऐसे कॉम्पिटेंट पार्टनर्स बोला जाता है। आगे के बारे में हम लोग देखेंगे बिजनेस। तो थर्ड जो हमारा है बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं। इसेंशियल पार्ट में बिजनेस आता है और उस बिजनेस की बात की जाती है। क्या है बिजनेस भाई? तो द कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप इज इंटर टू कैरी ऑन सम बिजनेस एक्टिविटीज। पार्टनरशिप क्यों? अगर आप पूछे कि पार्टनरशिप सिर्फ म्यूचुअली कॉन्सेंट के लिए हो रहा है, नो प्रॉफिट और नो लॉस के लिए हो रहा है, तो ये सही नहीं है। इसका इसेंशियल है कि यहाँ पे किसी न किसी तरह का बिजनेस होना है, प्रॉफिट गेनिंग होनी है, तभी हम पार्टनरशिप में आते हैं और पार्टनरशिप के इसेंशियल में ये बहुत वाइटल रोल निभाता है। आगे आते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट की बात होती है, बिजनेस की बात होती है, तो अब हम आते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ये इसेंशियल क्यों है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स? क्योंकि व्हेन समबडी इज इन कम इनटू द पार्टनरशिप, he will be responsible for those activities which is going on in the firm। तो आप उसके लिए कितने ज़्यादा शेयर के पार्टनरशिप होने वाले हैं, दिस इज ऑल इज इन documentation, and when you are entered in the partnership, everything has been totally clear by your other partner. You are responsible for those position and you will have to get this kind of share from this partnership या from this firm। तो ये आपको वहाँ पे शेयरिंग क्लियर हो जाती है। A partners may agree to bear the firm loses in a different condition, different rate ratio। अब जो क्या कहते हैं कि हम इसी में बात कर रहे हैं कि जब शेयरिंग होती है तो शेयरिंग में प्रॉफिट शेयरिंग का भी अकाउंटेबिलिटी रहता है, उसमें लॉस का भी अकाउंटेबिलिटी रहती है। आपको दोनों कंडीशन में आपका शेयर जो जितना है उसी के अकॉर्डिंग आप हकदार होते हैं प्रॉफिट का और हकदार होते हैं आप लॉस का। तो ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब म्यूचुअल एजेंसी नेक्स्ट जो हमारा इसेंशियल है वो म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या है? म्यूचुअल एजेंसी इज द कॉन्सेप्ट विच इज रनिंग in this kind of laws. We will have to understand the whole role and responsibility without any obstacle. The whole partner will be responsible for any kind of amendment, any kind of if is there any kind of dispute in the organization and the firm, everyone is responsible for every activities। म्यूचुअली हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं है, हम यहाँ पे बैठ के बात करेंगे और सबकी अग्रीमेंट, सबके कॉन्सेंट को सुना जाएगा। उसके बाद हम उस चीज़ को आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो। तो म्यूचुअल
एजेंसीज में हर वो पार्टनर्स जो कि इन्वॉल्व है पार्टनरशिप में, उनकी सिचुएशन और उनके अंडरस्टैंडिंग को every partner will be accept and every partner will be responsible for those activities which is happening in the firm, right? So these kind of things is the essential parts of the partnership act. अब पार्टनरशिप एक्ट समझने के साथ साथ हमें ये भी जान लेना है कि पार्टनरशिप एक्ट को आगे हम लोग कैसे रन कराते हैं. हु कैन बी अ पार्टनर, कौन पार्टनर हो सकता है. सो लेटर ऑन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी ऑन दैट पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स and to clear everything, who will be the partner, who can be eligible for the partnership. From now, you can go through these things for the partnership and partnership act, so you will understand everything. क्योंकि लॉ एक तरह से अगर आप नहीं समझते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझते हैं, अपने आप को नहीं समझते हैं और अपने सराउंडिंग्स को नहीं समझते हैं. तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लॉ को बहुत बारीकी से समझें और एक एक वर्ड्स वेरी मच मीनिंगफुल in the laws and articles, those articles which is in the given document, these are the basic thing of the law. So thank you so much for listening me. I hope you will understand, and still now if you have not subscribed my channel, you can do it. और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और इसको प्रमोट भी करें. थैंक यू.